السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن آپ نے ملاحظہ کی۔ اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ فی لیٹر پیٹرول 321 روپے 17 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث مختلف پروڈکٹس کی قیمت میں 50 سے 70% اضافہ ہو چکا ہے۔ وزیر توانائی علی پرویز ملک نے کہا کہ حکومت نے موجودہ حالات کے پیش نظر مشکل فیصلہ کیا تاکہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بغیر کسی رکاوٹ ممکن بنائی جا سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کی اچھی تعداد موجود ہے۔ گمبھیر سے پچھلے ہفتے والے دن سے کریٹ ہوئی ہے، تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا آج۔ دنیا میں جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ 50 سے 70% مختلف پروڈکٹس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ قیمتوں کے اندر بے پناہ بڑھاوا آج ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے مجبوراً قیمتوں کو انکریز کرنے کا مشکل فیصلہ کیا۔ توانائی کی فراہمی کے اندر کسی جگہ کوئی بریک نہ آئے۔ جو تھوڑا سا لیوی کے اندر رد و بدل کر کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 55 روپے پیٹرول کے اندر بھی ڈیزل کے اندر بھی قیمت کو بڑھانے جا رہے ہیں، وعدے کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کہ جس طرح یہ معاملہ سیٹل ہوگا تو ہم اسی پھرتی کے ساتھ وہ پرائسز کو دوبارہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کر کے اقدام اٹھائیں گے۔ جو ہمارے ذخائر موجود ہیں اس سے وہ ہم ایک اچھی جگہ پہ ہیں۔ So there is no panic discussion. Therefore, as whole of the government, we have to come together کہ اس کی جو سیناریو پلاننگ ہے، سیناریو انالیسس ہے وہ ہم کریں تاکہ جو as whole of the government ہم اس کی جو اپروچ ہے اس کو پرو ایکٹیو رکھیں۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ سے پاکستان کے عوام بھی مشکلات سے دوچار ہو گئے ہیں اور متاثر ہیں۔ وفاقی حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 55 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ عوام نے حکومت سے پیٹرول مصنوعات پر ٹیکس کم کر کے عوام کو کچھ ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر سے، جو ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں۔ جی علی شیر۔ جی بالکل، اس وقت میں اسلام آباد کے ایک پیٹرول پمپ کے باہر موجود ہوں اور اس وقت وفاقی حکومت کی طرف سے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ 25 سے 30 روپے کا اضافہ ہوگا، لیکن 55 روپے جو ہے وہ فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول کی تو قلت کو نہیں ہے، یہاں گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ شام سے ان اطلاعات کے بعد کہ شاید پیٹرول کی کوئی کمی ہونے جا رہی ہے یا پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ 25 سے 30 روپے بڑھنے کی خبریں چل رہی تھی، تو اس کی وجہ سے لوگ لائنوں میں لگ گئے اور اس طرح سے یہ پمپ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنا رش ہے۔ پیٹرول کی جو قلت ہے اس کو نہ آنے دینے کے لیے یہاں پہ پیٹرول کے جو ٹینکرز ہیں، ڈیزل اور پیٹرول کے آئل ٹینکرز، وہ بھی موجود، اور وجہ اس کی ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا جو حملہ ہے اور اس کے بعد بحیرہ ہرمز میں جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان میں جو رکاوٹ آئی ہے دنیا میں، اس کی وجہ سے یہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی معاشی صورت کے کمزور ہونے کے باوجود بھی پیٹرولیم مصنوعات پہ جتنا بڑا ٹیکس اور لیوی اور پی ڈی ایل سب کچھ لیا جا رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ، اس میں حکومت نے کوئی کمی نہیں کی ہے، بلکہ قیمت جو ہے جس طرح سے باہر سے آئی ہے اسی طرح سے پاس آن کر دی ہے۔ عوام کو تھوڑا سا بھی ریلیف دینے کے لیے اپنے ٹیکس نے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ بہت شکریہ علی شیر، ہم اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے مطالبہ کر دیا عوام کی جانب سے کہ حکومت ان اضافوں پر نظر ثانی کرے، اس میں کسی طرح سے کمی لائی جا سکے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے خرم گلزار سے، جو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں۔ جی خرم، لوگوں کا کیا رد عمل ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر؟ جی بالکل، حکومت نے مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے بعد عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں 55 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد اب پیٹرول کی جو پہلی قیمت تھی وہ
₹67 थी। इसी तरह अब जो बताया जा रहा है कि ₹55 इजाफा कर दिया गया है। अचानक से ये खबर मंजर-ए-आम पे आने के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि शहर भर के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल डलवाने के लिए पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं, लाइन में लगे हैं कि उनको पेट्रोल मिल जाए, ताकि जो ₹55 पेट्रोल महंगा किया गया है उसमें उनको सहूलत मिल सके। साहब हमारे मौजूद है, आप पेट्रोल लेने के लिए क्या कहते हैं आप? पिछले 1 घंटे से पेट्रोल की लाइन में खड़े हुए हैं। अब जंग ईरान पे मुसल्लत है, लेकिन उसके असरात यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो यहाँ शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद, साथ हम देख रहे हैं कि खवातीन की भी एक बड़ी तादाद जो कि कुछ बॉटल्स लेके बोतलें लेकर यहाँ पर आए हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको यहाँ से पेट्रोल मिल जाए। बल्कि दूसरे जो लोग हैं यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ लंबी कतार लगी हुई है जो पैदल हजरात हैं, बोतलों में लेने वाले शहरी, दूसरी तरफ मोटरसाइकिल सवार शहरी है पेट्रोल हासिल करने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद परेशानी से दो चार हो गए हैं और भारी टैक्सेस और मार्जिन की जद में 1 लीटर पेट्रोल पर 124 रुपये 95 पैसे टैक्सेस और मार्जिन की वसूली ली जा रही है। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर 117 रुपये 15 पैसे टैक्सेस और मार्जिन लागू कर दिया गया है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सईद आवान। जी मलिक सईद आवान, क्या अपडेट हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर टैक्सेस की बात करें तो इस टाइम पे 1 लीटर पेट्रोल पर 124 रुपये और 95 पैसे टैक्सेस और मार्जिन की वसूली की जा रही है। इसी तरह 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर 117 रुपये 15 पैसे टैक्सेस और मार्जिन लागू है। इस वक्त पेट्रोल पर 84 रुपये 40 पैसे फी लीटर जो लेवी है वो आयद है। हाई स्पीड डीजल पर 73 रुपये 30 पैसे फी लीटर लेवी लागू है। पेट्रोल की फी लीटर में 13 रुपये और 31 पैसे कस्टम ड्यूटी आयद है और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर में 15 रुपये और 68 पैसे कस्टम ड्यूटी आयद है। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर पर 2 रुपये और 50 पैसे क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आयद है। पेट्रोल और डीजल पर 8 रुपये और 64 पैसे फी लीटर डीलर कमीशन जो है वो भी लागू है और इसी तरह पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपये और 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन किया। पेट्रोल की फी लीटर में 8 रुपये और 23 पैसे इनलैंड फ्रेट एक्वलाइजेशन मार्जिन शामिल है। हाई स्पीड डीजल पे IMEI चार्जेस जो है वो 6 रुपये और 25 पैसे हैं। पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो वसूल नहीं किया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद आवान, तफसील से बता रहे थे आदाद शुमार जो टैक्सेस की मद में हम पर मज़ीद जो है बोझ डाल रहे हैं। आलमी मंडी का जिक्र करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $92 फ़ी बैरल तक पहुँच गया है। एक हफ्ते के दौरान कीमत में $18 फ़ी बैरल तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल 2024 के बाद पहली बार अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 से ऊपर हो गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी ऑयल मार्केट में तेज़ी आ गई। कतर के वज़ीर तवानाई ने मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस तेल की कीमत में $150 फ़ी बैरल तक जाने का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। कतर के वज़ीर तवानाई ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र तेल की कीमत $150 फ़ी बैरल तक जाने का खदशा ज़ाहिर किया है। उनका कहना था कि ये जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। कतरी वज़ीर तवानाई का कहना था कि ईरान, अमरीका और इसराइल की वजह से मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंग के बायस आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। तेल की कीमतें $150 फ़ी बैरल की शरह को छू सकती हैं। सऊदी अरब ने अल खरज गवर्नरेट पर क्रूज़ मिसाइल से हमला नाकाम बना दिया है। सऊदी वज़ारत दिफा ने मिसाइल तबाह करने की तस्दीक कर दी है। मुत्तहदा अरब अमारात ने फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। मलबा गिरने से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। उधर ईरान की जानिब से कुवैत की अली अल सालेम एयरबेस पर भी हमला किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले 7वें रोज़ भी जारी हैं। अमेरिका का ईरानी मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाइया के B-2 तैयारों ने मिसाइल तंसीबात पर तबाहकुन हमले किए। इसराइल का ईरान में ज़ेर ज़मीन बंकर पर हमला। 50 से ज़ायद इसराइली लड़ाका तैयारों ने बंकर को निशाना बनाया। तेहरान, शिराज, करमानशाह और अस्फहान में धमाके। अमेरिकी और इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 1332 हो गई है।
ईरान पर इसराइल और अमेरिका के तबाहकुन हमले जारी, शोहदा की तादाद 1300 से भी तजावुज कर गई। तेहरान जोरदार धमाकों से गूंजता रहा, मुख्तलिफ मकामात पर धुएं के बादल छा गए, रिहायशी इलाकों पर भी बारूद की बारिश। तेहरान यूनिवर्सिटी के अतराफ में भी धमाके, शिराज, किरमानशाह और इस्फहान के अतराफ भी धमाकों की आवाजें सुनी गयी। अमरीकी फौज के मुताबिक B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बमों से गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। अमरीका का ईरान पर 72 घंटों में 200 अहदाफ को निशाना बनाने और 30 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। इसराइल का ईरान में सुप्रीम लीडर के लिए बनाए गए जेरे जमीन बंकर पर हमला, 50 से ज्यादा इसराइली लड़ाका तैयारों ने बंकर को निशाना बनाया। सेहूनी फौज ने ईरान के एडवांस डिफेंस सिस्टम्स तबाह करने का दावा कर दिया। इसराइल का कहना है कि 6 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और 3 एडवांस डिफेंस सिस्टम्स नाकारा बना दिए। इसराइल का आजादी स्क्वायर के करीब फौजी अड्डे पर हमला, आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक बमबारी से 3643 अवामी मराकज, 3090 घर, 24 तिब्बी मराकज और हिलाल अहमर के 9 दफातर तबाह हो गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान की फजा और समंदर पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया। फौजी ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान की मिसाइल तैयार करने की सलाहियत को निशाना बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। ईरान के सफाक दुश्मन पर कारी वार, इसराइल पर जदीद हथियारों से हमला कर दिया। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। तिल अबीब और हैफा समेत मुख्तलिफ इसराइली शहरों पर खुर्रम, शहर फोर, खैबर और फतह मिसाइल दाग दिए। खलीजी ममालिक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी और सेहूनी जारियत पर ईरान का भरपूर जवाबी वार, ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 22वीं लहर का आगाज। इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, इसराइली शहरों पर खुर्रम, शहर 4, खैबर शिकन और फतह मिसाइल दाग दिए। तल अबीब क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइलों की बारिश कर दी। खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अहदाफ भी ईरान के निशाने पर है। मनामा में 2 होटल्स और एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले। इराकी कुर्दिस्तान में अमरीकी कंपनी की ऑयल फील्ड को ड्रोन से निशाना बनाया, आग भड़क उठी। ईरान का कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर भी हमला। सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को फिजा में नाकाम बना दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मशरकी रीजन में ड्रोन तैयारे को भी फिजा में तबाह कर दिया गया। मिसाइल खतरे के पेश नजर दुबई में हंगामी अलर्ट जारी, शहरियों को फौरी महफूज मुकामत पर मुंतकली की हिदायत कर दी। ईरानी फौज का 7 इसराइली ड्रोन तैयारे मार गिराने का दावा। रूस ईरान को अमरीकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने बड़ा दावा कर दिया। लिखा कि अमरीकी इंटेलिजेंस के 3 करीबी ज़राए ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी। रूस मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरी जहाज़ों और तैयारों कई लोकेशन ईरान को देता है। ईरानी अपनी इंटेलिजेंस सलाहियतों में अब कमी आ गई है और अमेरिका के कई रडार्स और दीगर तनसीबात पर ईरान ने सही निशाना लगाया। ईरान चुन कर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। अखबार ने यह भी इंकिशाफ किया है कि अमेरिका के इंटरसेप्टर्स इंतहाई तेज़ी से कम हो रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईरान में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है और जंगी सूरत हाल में भी कोई अफरा तफरी नहीं है। कारोबार चल रहा है, सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। ईरान के हालात से मुतालिक मज़ीद जानते हैं माहिर उमूर मशरक़ी वस्ता डॉक्टर सालेह बहश्ती से। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमरीकी टैक्स दहंदगान का पैसा धुएँ और बारूद में उड़ाया जाने लगा। ईरान से जंग में अमेरिका के अखराजात हैरान कुन तक बढ़ने लगे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों डॉलर के खर्च ने अमरीकियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईरान से जंग पर अमेरिका का कितना खर्चा हो रहा है? वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने पेंटागन के आदाद-ओ-शुमार और अहदाफ की बुनियाद पर तखमीना पेश कर दिया। अमरीकी सहाफ़ती इदारे CNN के मुताबिक पहले 100 घंटे में ही अमरीकी अवाम के 3 अरब 70 करोड़ डॉलर धमाकों में धुआं बनकर उड़ गए थे और अब रोज़ाना के 90 करोड़ डॉलर खर्च हो रहे हैं। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक सिर्फ फ़ज़ाई कार्रवाइयों में रोज़ाना 3 करोड़ डॉलर खर्च हो रहे हैं। बहरी कार्रवाइयों पर 1.5 करोड़ डॉलर रोज़ाना खर्च होते हैं। ज़मीनी कार्रवाई पर भी रोज़ाना 16 लाख डॉलर खर्च हो सकते हैं। अमरीकी जंगी तैयारे, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल सिस्टम इन अखराजात को मज़ीद बढ़ा देते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को जंगी हालत में चलाने का खर्च रोज़ाना 60 लाख डॉलर तक जाता है। फाइटर तैयारे और दीगर जंगी असासे भी करोड़ों डॉलर्स रोज़ाना खर्च करवाते हैं।
जंग के माली अखराजात के सबब अमरीका में महंगाई के खदशात बढ़ रहे हैं। अमरीका में असल तशवीश इस बात पर है कि अखराजात कई गुना बढ़ सकते हैं। अमरीका की माजी की जंगें भी अक्सर इब्तदाई अंदाजों से कहीं ज़्यादा महंगी साबित हुईं। लाहौर में रियाज ट्रस्ट अस्पताल के तहत सर्जिकल टावर के हवाले से आपको अपडेट करें कि लाहौर में रियाज मंसूर ट्रस्ट अस्पताल के सर्जिकल टावर के तहत कायम जदीद एमरजेंसी वार्ड की इफ्तिताही तकरीब एमरजेंसी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह मारूफ समाजी शख्सियत शेख आबिद महमूद ने किया। मेहमान खुसूसी ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, इदारे की खिदमात को सराहा। शेख आबिद महमूद ने थैलेसीमिया के मरीज़ों में तहफ़ तकसीम किए। सदर रियाज मंसूर ट्रस्ट मोहम्मद नफीस का कहना था कि जदीद एमरजेंसी वार्ड सर्जिकल टावर मंसूबे का एक अहम संग मील है, जिसका मकसद नादार मरीज़ों को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।